Hello, my dear students. My name is Ankit Sharma, and I welcome you all to the Prime Skills once again. So, we are starting our unit number 4 today. So, the unit 4 is Presentation and Interaction Skills, and this is the lecture 1 of unit 4. So, today we are going to discuss about the presentation strategies. So, although this is the last topic of the unit, but I wanted this topic to be covered in the very beginning so that you guys can be benefited for other topics. So let's go ahead, and if you have not subscribed the channel yet, make sure that you subscribe the channel and hit the bell icon so that you can keep on getting all the notifications related to all the videos which I keep on posting over here. So I don't only post the videos related to your curriculum and the syllabus, I post videos related to your personality development, your soft skills, your communication skills, your vocabulary development. So if you really want to establish yourself as a communicator or a strong communicator, make sure that you hit the bell icon so that you can keep on getting all the notifications related to all the videos. Okay, so apart from that, also we have already covered unit 1, 2 and 3. Unit 1 is going in parallel, so there are certain topics which I'm going to cover very soon. But if you have not visited those videos, if you have not watched those videos, make sure that you watch them in order to understand the entire curriculum properly. Okay, so let's go ahead without further ado and start talking about our today's topic. So our today's topic is presentation strategies, and this is unit 4, and the name of the unit 4 is presentation and interaction skills, and we would be discussing about our lecture 1. And once again, this is the course BS 105205 soft skills for BTech first year AKTU students, and this is according to the new syllabus which was just recently released in November 2022. So let's go ahead, and also if you want to download the PDF notes, make sure that you join our WhatsApp and Telegram channel so that you can download from there. तो चलिए आगे चलते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना यूनिट को डिस्कस करना। तो हमारा जो टॉपिक है आज का बच्चों, ये हमारी यूनिट का पूरा सिलेबस है, और हमारा जो टॉपिक है वो है प्रेजेंटेशन स्ट्रेटजीज, जिसमें कि हम प्लानिंग, प्रिपरेशन, ऑर्गेनाइजेशन एंड डिलीवरी, इन चारों टॉपिक्स को हम डिस्कस करने वाले हैं। सो मेक श्योर कि आप ध्यान से समझें और चीजों को अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, ग्रास्प करने की कोशिश करें। So first of all, let us talk about what is presentation. Yes, this lecture is going to be a bit longer because there are near about 62 slides. So I request you to just go through, the entire video in order to understand the entire concept. Okay. So सबसे पहले हम बात करते हैं कि what is a presentation. So a presentation is a formal talk to one or more person that presents idea or information in a clear or structured way. यानी सबसे पहली बात तो एक फॉर्मल होती है, ये एक फॉर्मल टॉक होती है। फॉर्मल टॉक का मतलब इसमें फॉर्मेलिटी होती है, यू कैन नॉट यूज इनफॉर्मल और यू कैन से नॉन फॉर्मल सॉर्ट ऑफ लैंग्वेज और द वोकैबुलरी। अपार्ट फ्रॉम दैट, you can just give a presentation to one person or maybe more than one person, and you present your ideas or information in a clear and structured way. So clarity and structure are two important aspects of the presentation. Number 2, all presentations have a common objective. They are given in order to inform, to train, persuade or sell. हर प्रेजेंटेशन का कुछ ना कुछ एक ऑब्जेक्टिव जरूर होता है। आप कभी भी प्रेजेंटेशन देंगे तो आपके दिमाग में ऑब्जेक्टिव पहले से क्लियर होना चाहिए कि व्हाट यू रियली वांट टू डू। जनरली जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं टू इन्फॉर्म, या तो किसी को इन्फॉर्म करना चाहते हैं, ट्रेनिंग देना चाहते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन देना चाहते हैं, परसुएड करना चाहते हैं, या फिर आप कुछ चीज सेल आउट करना चाहते हैं। ठीक है। In a participated two-way communication process characterized by a formal and structured presentation of the message using visual aids. Generally आप जब presentation का process use करते हैं तो उसमें visual aids का use करते हैं। Visual aids मतलब pictures, videos, illustrations, charts, diagrams, जिससे कि आपकी presentation थोड़ी सी interactive हो जाए। It is purposeful and goal-oriented and communicates a message to an audience in a way that brings about the desired change in their understanding and opinion. सबसे पहली बात, प्रेजेंटेशन हमेशा गोल ओरिएंटेड और पर्पसफुल होती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इसका कॉमन जो एंड गोल होता है वो सामने वाले व्यक्ति के बिहेवियर और उसके ओपिनियन में या उसकी अंडरस्टैंडिंग में चेंज लाने के लिए होता है। ठीक है। इट इज फ्लेक्सिबल, चेंजिंग एज वेल एज कॉम्प्लेक्स एंड वेरिड। ये फ्लेक्सिबल भी होती है, इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है, और ये वेरिड भी होती है, मतलब डिफरेंट टाइप की होती है, जो कि हम देखेंगे कि प्रेजेंटेशन के बहुत सारे टाइप्स आपके होते हैं। An oral presentation is purposeful. अगर आप यहाँ पे देखा जाए कि प्रेजेंटेशन की कोर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, नंबर 1, इट शुड बी पर्पसफुल. इट शुड ऑलवेज हैव सम पर्पस, सम डेफिनेट पर्पस कि आप अचीव क्या करना चाहते हैं प्रेजेंटेशन से. Number 2, it should be interactive. Interactive means that you should interact with people or your audience. If you're not interacting, it would be one-side communication, और one-side communication जो होता है कभी भी effective नहीं होता. Number 3, it is formal.
प्रेजेंटेशन कभी भी आप डिलीवर कर रहे हो, इट कैन नेवर बी इनफॉर्मल। फॉर्मेलिटी इसका कोर कॉन्सेप्ट होता है, कोर आइडिया होता है। एंड देन ऑडियंस ओरिएंटेड प्रेजेंटेशन आप अगर दे रहे हैं तो वो प्रेजेंटेशन आपके लिए नहीं है, वो प्रेजेंटेशन ऑडियंस के लिए है। सो ऑडियंस should be taken into consideration so that the presentation can be successful and they can grasp the entire concept. Okay, several forms of the oral presentation. Now where exactly presentations are required, कहां पे presentation? अच्छा, यहां पे एक बात मैं बिल्कुल क्लैरिटी के साथ आपको डिफाइन कर दूं, ये प्रेजेंटेशन का मतलब केवल पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं होता। प्रेजेंटेशन का मतलब जब भी किसी टॉपिक के ऊपर आप अपने विचार, अपने आइडियाज को रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द प्रेजेंटेशन। ओके, सो मेक श्योर कि आप प्रेजेंटेशन को अच्छे तरीके से समझे। तो प्रेजेंटेशन कहां कहां पे देने की जरूरत पड़ती है? सेमिनार्स, वर्कशॉप्स, सिंपोजिया, स्टूडेंट प्रेजेंटेशन, इंडस्ट्री कॉन्फ्रेंसेस, प्रोडक्ट लॉन्चेस, press conferences, team presentations, annual general meetings, departmental presentations and company profile presentation. इनमें से किसी भी जगह पे आपको प्रेजेंटेशन देने की जरूरत पड़ सकती है। Whatever may be the form of presentation, they all seek to achieve certain objectives. कोई भी प्रेजेंटेशन हो, हमेशा एक ऑब्जेक्टिव आपको अचीव करने की कोशिश करनी होती है। कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव या कोई ना कोई गोल जरूर होना चाहिए, तभी आप प्रेजेंटेशन में सक्सेसफुल हो पाते हैं। Now comes the objective of presentation. If you are unclear on your objective, it will be very difficult to create a powerful presentation. अगर objective clear नहीं है, अच्छी presentation नहीं बना पाएंगे। So make sure that you are clear on why you are talking and what the point that you need to get across. आपका point क्या है? आप बात क्यों कर रहे हैं? आप presentation क्यों deliver कर रहे हैं? उस why का आंसर होना चाहिए, and then what you are going to deliver. What content, what a specific, the content which you are going to deliver in front of people, what is that? If you can successfully answer those two questions, what and why, before you start planning, you will have much better idea of a structure. अगर आपके पास what और why का आंसर है, then you will definitely be able to give a better presentation or much better, you can say, information. Next, when deciding upon your objective, ensure you are smart. Smart का मतलब क्या होता है? Specific, measurable, achievable, relevant and time bound. अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि स्मार्ट गोल्स जो होते हैं वो भी आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बारे में भी हम लोगों ने एक बार डिस्कस किया था। अगर फ्यूचर में टाइम मिला तो जरूर डिस्कस करेंगे। बट यस, व्हेनेवर यू आर हैविंग सम ऑब्जेक्टिव, मेक श्योर दैट यू आर स्मार्ट. Next is, when you are doing a presentation, it is essential to think about the objective you want to achieve. What is the objective which you want to achieve? आपका objective क्या है जिसको आप अचीव करना चाहते हैं? Are you there to educate and to inform the audience? क्या आप educate करना चाहते हैं, जैसे कि मैं इस समय कर रहा हूं? क्या आप inform करना चाहते हैं? क्या आप और कोई ऑब्जेक्टिव रखते हैं जो आप अचीव करना चाहते हैं? मेक श्योर कि आपका ऑब्जेक्टिव जो है वो बिल्कुल क्लियर हो. और इज इट मोर अबाउट एनर्जाइजिंग एंड एंटरटेनिंग दैम? सो इफ यू टॉक अबाउट कपिल शर्मा शो, देन कपिल शर्मा इज also a presenter. He is also presenting his content, but his objective is to just put the humor in, or rather I should say to do the comedy so that he can entertain or engage people, right? So objective is very important. Next, depending on the objective, the structure, content and the way of presenting will change dramatically. जैसा आपका objective होगा, आपका content, आपका way of presentation उसके हिसाब से change होता रहेगा. Okay, so please make sure कि आप objective को clear करें. Major objectives of the presentation are, जब भी कभी आप एक presentation देंगे तो आपके major objectives क्या होंगे? Number 1, to inform. या तो आप inform करने के लिए presentation दे रहे होंगे, या फिर आप एजुकेट करने के लिए अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, या फिर आप डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन दे सकते हैं, किसी सॉफ्टवेयर का डेमोन्स्ट्रेशन दे सकते हैं, मशीन का डेमोन्स्ट्रेशन दे सकते हैं. और योर ऑब्जेक्टिव कैन बी टू परसुएड, आप किसी को परसुएड करने के लिए भी प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, और टू नेगोशिएट, किसी के साथ नेगोशिएशंस करने के लिए, बार्गेनिंग करने के लिए भी आप अपनी प्रेजेंटेशन दे सकते हैं. तो यू विल हैव टू चूज दैट व्हाट एग्जैक्टली योर ऑब्जेक्टिव इज, और द ऑब्जेक्टिव कैन बी व्हिच इज समथिंग नॉट इन दिस लिस्ट. The objective can be varied, objective can be of variety of types, so you must know that what your objective is. Now, importance of presentation. Now comes what is exactly the importance of presentation. Business people rank oral presentation skill among the most important factor responsible for their success. If you are not able to present your idea, if you are not able to present your skills to people, then of course you are not a person who will be able to do a good business, or who will be able to become a good businessman. So please understand, in order to become a good employee, in order to become a good working professional, you need to understand what or how exactly you should deliver the presentation. Oral presentation is a tool of professional and business interaction. एक tool होता है जिसके थ्रू आप business और professional interaction कर सकते हैं. In fact, in some organization, institutes or universities, recruitment is made on the basis of selection process which involves the oral presentation. कुछ cases में आपका oral presentation जो होता है वो आपके recruitment का criteria भी होता है.
नेक्स्ट, द एबिलिटी टू डिलीवर एन इफेक्टिव प्रेजेंटेशन इज एसेंशियल फॉर ऑल ऑफ अस। अगर हम एक अच्छी प्रेजेंटेशन दे सकते हैं तो आप मान लीजिए कि आपके करियर में आपके सक्सेस के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रेजेंटेशन? प्रेजेंट योर आइडियाज इन अ परसुएसिव वे। आप परसुएसिव वे में प्रेजेंटेशन दे सकें टू मेक आवर ऑडियंस इंटरेस्टेड, टू यूज अप्रोप्रिएट विजुअल्स एंड हाउ टू रिफ्लेक्ट कॉन्फिडेंस, हाउ एग्जैक्टली यू कैन रिफ्लेक्ट अ कॉन्फिडेंस. Be it the work or socially, we have a need to be able to get our point across to be successful. अगर आप सामने वाले व्यक्ति को कुछ भी समझाना चाहते हैं, then your presentation skills must be excelled. Your presentation skills must be appropriate. You should be a good presenter, a confident presenter. Okay. If you're good at delivering presentation, we can build a strong reputation and improve self-confidence. Already told about it. To begin one's presentation in an effective way, develop one's idea logically and conclude one's presentation with something memorable. अगर आप presentation अच्छी देना चाहते हैं, starting और end particularly आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए. Okay. So in order to deliver a good presentation, you need to understand 4 P's. What are 4 P's? Plan, prepare, practice, and perform. So now we are going to discuss about these 4 P's, which are the core of our topic, which are core of our curriculum here. So make sure that you understand them properly. Okay. So presentation strategies की अब हम बात करेंगे बच्चों. What are the presentation strategies? So there are 4 presentation strategies. Number 1 or the phase 1 is plan. Okay. So the step 1 is plan. Step 2 is prepare and organize. Okay. अभी हम इनको elaborate करेंगे. So don't worry. Number 3 is practice or rehearse, and number 4 is perform or present. ओके तो सबसे पहले प्लानिंग करते हैं, उसके बाद हम प्रेपरेशन और ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, तीसरे यानी थर्ड स्टेप में हम प्रैक्टिस और रिहर्सल करते हैं, एंड फोर्थ स्टेप में वी परफॉर्म और प्रेजेंट और डिलीवर। ओके तो इसमें डिलीवरी भी आप लगा सकते हैं। तो चलिए अब एक एक करके हम डिस्कस करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्टेप नंबर 1 प्लानिंग की बात करते हैं। तो प्लानिंग प्रेजेंटेशन के हमारे 4 कंपोनेंट होते हैं, या फिर हम किस तरीके से प्लानिंग कर सकते हैं, 4 तरीके से हम बेसिकली प्लानिंग कर सकते हैं। Number 1, we should understand the purpose of the presentation. So purpose identification should be the first part. Second part is the audience analysis. Third part is the occasion analysis, and fourth part is the topic finalization. ठीक है, तो सबसे पहले आपको पर्पस पता होना चाहिए, उसके बाद आप ऑडियंस आपको पता होना चाहिए कि ऑडियंस की क्या कैरेक्टरिस्टिक है, विल डिस्कस अबाउट दैट। देन यू शुड ट्राई टू एनालाइज द ओकेजन। ओकेजन क्या है? खुशी का ओकेजन है, गम का ओकेजन है, फॉर्मल हर जगह हो सकता है। देखिए प्रोडक्ट लॉन्च का ओकेजन है, डेमोन्स्ट्रेशन का ओकेजन है, इंस्ट्रक्शन यानी क्लास का ओकेजन है, या फिर क्लास का कमेंसमेंट है, व्हाटएवर द ओकेजन, ऑन द बेसिस ऑफ ओकेजन योर प्रेजेंटेशन विल बी डिफरेंट। सो लेट्स ट्राई टू इलैबोरेट देम वन बाय वन। तो अगर हम बात करें, चलिए पहले प्लानिंग को थोड़ा सा और समझ लेते हैं। प्लानिंग द प्रिपरेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट, इट हेल्प्स द प्रेजेंटर टू व्हाई प्लानिंग इज इंपॉर्टेंट। नंबर 1, नो द ऑडियंस एंड स्टिमुलेट देयर इंटरेस्ट। इफ यू रियली वांट टू डिलीवर अ बेस्ट प्रेजेंटेशन, मेक श्योर दैट यू नो योर ऑडियंस एंड यू आर एबल टू स्टिमुलेट देयर इंटरेस्ट। बी सेंसिटिव टू देयर नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ ऑडियंस। अगर ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस भी खरे नहीं उतरेंगे तो आपके प्रेजेंटेशन को सब कोई भी नहीं समझेगा। नो इट्स पर्पस, पर्पस पता होना चाहिए। एनालाइज द ओकेजन, ओकेजन पता होना चाहिए। फिट द मटेरियल टू टाइम एट इट्स डिस्पोजल। आपको मिले हैं 30 मिनट्स बोलने के लिए, लेकिन आपके पास मटेरियल है 1 आवर का, देन इन दैट केस यू विल नॉट बी एबल टू डिलीवर अ इफेक्टिव प्रेजेंटेशन। सेलेक्ट एंड नैरो अ टॉपिक फॉर हिज प्रेजेंटेशन। टॉपिक को नैरो डाउन करना है। जब आप जनरलाइज टॉपिक के बारे में बात करते हैं, देन यू हैव टू मच टू टॉक अबाउट, बट व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द स्पेसिफिक थिंग, योर प्रेजेंटेशन इज गोइंग टू बी वंडरफुल। Purpose identification. How to identify the purpose? Start by defining its purpose. Then what is the purpose of the presentation? You need to ask your question. Okay, कि आप किस चीज के ऊपर फोकस करना चाहते हैं, that topic should be very clear. So purpose identification के लिए general purpose include to inform. या तो आपका पर्पस हो सकता है किसी सामने वाले व्यक्ति को इन्फॉर्म करना, परसुएड करना, जब आप सामने वाले व्यक्ति के बिहेवियर में, एटीट्यूड में, बिलीफ में, वैल्यूज में चेंज लाना चाहते हैं, और टू डेमोन्स्ट्रेट, टू हेल्प लिसनर्स नो हाउ टू डू समथिंग। अगर आप किसी प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे हैं तो वहां पे भी आप अपना पर्पस, यानी आपका पर्पस इन तीनों में से एक हो सकता है। परसुएशन, नेगोशिएशन हो सकता है, या फिर आप केवल इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, किसी को पढ़ाने के लिए यूज कर सकते हैं, या फिर किसी को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो प्रेजेंटेशन का पर्पस आपको क्लियर होना चाहिए। Identifying the specific purpose of the presentation involve identifying the observable, measurable action that the audience should be able to take, and using one idea that matches audience need, knowledge, expectation and interest. तो ऑडियंस को एनालिसिस करके जब आप अपने पर्पस को आइडेंटिफाई करेंगे, मतलब पर्पस को आइडेंटिफाई करके जब आप ऑडियंस को एनालिसिस करेंगे, तो उसके साथ इसका सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए। इट शुड फोकस ऑन ऑडियंस बिहेवियर एंड रीस्टेट द स्पीच टॉपिक। आपकी स्पीच का जो टॉपिक है उसको रीस्टेट करना चाहिए आपके जो पर्पस स्टेटमेंट को, यानी पर्पस स्टेटमेंट जो है वो आपकी स्ट्रेटजी के साथ मैच करना चाहिए। ठीक है,
तो फॉर एग्जाम्पल आपके पर्पज स्टेटमेंट क्या हो सकते हैं? पर्पज स्टेटमेंट स्टार्टिंग में आप लिख सकते हैं जैसे कि at the end of my presentation, the audience will be able to describe 3 advantages of using HP Precision Scan LT software. This is the informative presentation. अगर आप informative presentation देना चाहते हैं तो इस तरीके का purpose statement आप रख सकते हैं. इसके अलावा at the end of my presentation, the audience will be able to use HP Precision Scan software. This is the demonstrative sort of presentation. ठीक है? A presentation could be informative, persuasive और demonstrative depending upon these purpose. जो भी purpose आप choose करेंगे उसके basis पे आपकी presentation का type change हो जाएगा. ठीक है? अब बात करते हैं ऑडियंस एनालिसिस की. वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपकी प्रेजेंटेशन ऑडियंस के लिए है, तो मेक श्योर कि आप ऑडियंस को अच्छे तरीके से एनालाइज कर पाए. इट्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ ओरल प्रेजेंटेशन. वी नो दैट आइडेंटिफाइंग ऑडियंस कैरेक्टरिस्टिक्स, एनालाइज ऑडियंस नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस एंड आइडेंटिफाइंग फैक्टर्स फॉर गेटिंग एंड मेंटेनिंग द ऑडियंस अटेंशन. 3 चीजें यहाँ पे पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले आपका नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस. ऑडियंस की नीड क्या है, एक्सपेक्टेशंस क्या है, उनका जो फैक्टर्स उनकी अटेंशन को मेंटेन करने के लिए, राइट? तो आप उनकी नीड और एक्सपेक्टेशन को समझें और आप उनकी अटेंशन को होल्ड कर पाए ज्यादा टाइम के लिए. ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि आप उनको कैसे कर सकते हैं. सो 3 चीजें पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट है अगर आप अपने ऑडियंस का एनालिसिस करना चाहते हैं. नंबर 1, आइडेंटिफाई ऑडियंस कैरेक्टरिस्टिक्स. नंबर 2, एनालाइज ऑडियंस नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस. नंबर 3, रिटेनिंग ऑडियंस अटेंशन. कैसे कैसे करेंगे इनको भी एक बार देख लेते हैं. ऑडियंस एनालिसिस करने के लिए आइडेंटिफाई ऑडियंस कैरेक्टरिस्टिक्स. सबसे पहले ऑडियंस कैरेक्टरिस्टिक्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? द प्रेजेंटर नीड्स टू आइडेंटिफाई देयर बेसिक कैरेक्टरिस्टिक लाइक बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, कहां से बिलोंग करते हैं, कौन सी क्लास से बिलोंग करते हैं, मीडियम, मिडिल क्लास, हाई क्लास, लो क्लास, व्हाटएवर इट इज, एज, जेंडर, सोशल, इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल बैकग्राउंड, रिलीजन, पॉलिटिकल एफिलिएशंस, पोजीशंस, प्रोफेशन, एटीट्यूड, लाइक एंड डिसलाइक, बिलीफ, ट्रू एंड फॉल्स, वैल्यू, गुड और बैड, ऑल दीज थिंग्स. क्योंकि अगर आप प्रेजेंटेशन बच्चों के लिए दे रहे हैं, then that would be entirely different from that of the presentation for business leaders. Okay, so you need to understand your audience. The geographical background will always matter because your language, the preference of your language or the choice of your language will be entirely dependent upon the geographical, you can say, background of the people. Okay, if these audience characteristics are identified, one can be much better equipped to plan and prepare his or her presentation effectively. Okay, अगर आपके पास ये information है, आप आसानी से अपनी presentation को plan कर सकते हैं. Then audience analysis, need and expectations. ऑडियंस ओरिएंटेड आपकी प्रेजेंटेशन होनी चाहिए. दैट शुड बी वेरी क्लियर एंड यू शुड कीप इट चेंजिंग द वे यू आर कन्वेइंग योर मैसेज डिपेंडिंग अपॉन द नीड एंड एनालिसिस ऑफ द नीड एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ द ऑडियंस. ऑडियंस चाहते हैं आपसे एक ऐसा लेक्चर देना कि आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के ऊपर कुछ डिस्कस कीजिए और आप वहां पे वर्बल कम्युनिकेशन डिस्कस कर रहे हैं. ऑफ कोर्स द ऑडियंस विल बी कंप्लीटली ऑफ द ट्रैक. ओके, राइट. नेक्स्ट इज तो किस तरीके से आप ये नीड्स और एक्सपेक्टेशंस कैसे एनालाइज कर सकते हैं? यू नीड टू आस्क योरसेल्फ सर्टेन क्वेश्चंस. फॉर एग्जांपल, व्हाई विल दे लिसन टू मी? हु आस्क्ड देम टू बी हियर? इज देयर अटेंडेंस कंपल्सरी? व्हाट आर देयर इंटरेस्ट? व्हाट आइडियाज और एक्सपीरियंस डू आई हैव दैट ऑडियंस मे लाइक टू हियर? What are their needs? What are their expectations? How do my objectives meet audience need? You need to ask these questions. And once you have the answer of these questions, you would be able to analyze the needs and expectations. The factors for getting and maintaining audience attention. How exactly you need to maintain the audience attention? The people will be more interested in presentation and listen more attentively, understand what is said, and remember the key point if it meets their requirement. अगर कोई भी चीज आपके मन की कही जा रही है, आपकी पसंद की कही जा रही है, आप उसको ज्यादा समय तक याद रखेंगे. ठीक है, तो मेक श्योर कि आप ऑडियंस की नीड के हिसाब से ही काम करें. ऑलराइट, तो अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इफ यू रियली वांट टू जस्ट मेंटेन द ऑडियंस अटेंशन, मेक श्योर दैट यू आर फ्लेक्सिबल. अगर आपको लग रहा है ऑडियंस के रिएक्शन से कि दे आर नॉट टेकिंग इंटरेस्ट इन योर टॉपिक और मे बी द वे यू आर डिलीवरिंग इट, मेक श्योर टू चेंज इट, मेक श्योर टू ऑल्टर इट, ट्राई टू एक्सपेरिमेंट थिंग्स. ओके, नाउ factors for getting maintaining order. How exactly you need to do that? You need to ask certain questions. How can I relate my presentation to the needs and expectations of the audience? Practical example, live example क्या ले सकता हूँ? What should I do to ensure my audience remembers my main points? क्या करना चाहिए? क्या आप उनको बार बार रिवाइज कराएं या फिर आप उनको एक इन्फोग्राफिक्स की फॉर्म में उनको शो करें जिससे कि वो ज्यादा समय तक उनको याद रख पाए, राइट? What style will appeal to my audience? कैसे स्टाइल में आप अपनी प्रेजेंटेशन को डिलीवर करना चाहते हैं? ह्यूमरिस्टिक स्टाइल हो सकता है, इंफॉर्मेटिव स्टाइल हो सकता है, डेमोन्स्ट्रेटिव हो सकता है, आपकी लैंग्वेज का स्टाइल डिफरेंट हो सकता है. What are the changes that I should make? Right? क्या चेंजेस उसके अंदर लेके आऊं जिससे कि मैं उसको और ल्यूसिड बना सकूं? How I incorporated ways of encouraging my listeners to give feedback and share information that will make my presentation more effective. किस तरीके से मैं लोगों के साथ ज्यादा engage कर सकता हूं?
Have I planned strategies for dealing with listeners' communication apprehension? Or how will I handle hostile listeners to those who are disruptive? Hostile listeners कौन होते हैं? ऐसे व्यक्ति जो आपको सुनना नहीं चाहते और वो आपकी हमेशा आपको बोलते टाइम डिस्टर्ब करेंगे, किसी ने कुछ ना कुछ क्वेश्चंस पूछ के, कुछ ना कुछ डिस्ट्रप्शन डाल के, कभी आपको इंसल्ट करके, कभी आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ के जिनका आंसर्स आपको नहीं पता होंगे, राइट? इस तरीके से वो आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे. दे आर कॉल्ड द हॉस्टाइल लिसनर्स हु आर डिस्टर्बिंग द एंटायर फ्लो. सो प्लानिंग प्रेजेंटेशन. अच्छा, ऑडियंस एनालिसिस में आपके जो एक लेनी लास्कोस्की एक बहुत ही अच्छे इंटरनेशनल प्रोफेशनल स्पीकर हैं, उनके हिसाब से आप ऑडियंस को एक एक्रोनियम मान सकते हैं जो कि आपको रियलाइज कराएगा कि ऑडियंस का एक्चुअल मीनिंग क्या है. ऑडियंस मतलब ए फॉर ऑडियंस, यू फॉर अंडरस्टैंडिंग. ऑडियंस का मतलब यू नीड टू अंडरस्टैंड देम. नंबर 2, डेमोग्राफिक्स. उनके डेमोग्राफिक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, उनके इंटरेस्ट के बारे में, उनके एनवायरमेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए, उनकी नीड्स, उनकी कस्टमाइज, और आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो उनके हिसाब से कस्टमाइज होनी चाहिए, एंड एक्सपेक्टेशंस आपको अच्छे से जानकारी होनी चाहिए. ओनली देन यू विल बी एबल टू डिलीवर अ वेरी गुड प्रेजेंटेशन. एंड नंबर सी इज द ओकेजनल एनालिसिस. ओकेजन कैसा है उसका एनालिसिस करना आपके लिए इंपॉर्टेंट है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द इवेंट और कम्युनिकेटिव सिचुएशन. कैसी सिचुएशन है, फॉर्मल है, इनफॉर्मल है. जनरली इनफॉर्मल, जनरली आपकी जो प्रेजेंटेशन की सिचुएशन है वो फॉर्मल ही होगी. सेवरल एस्पेक्ट ऑफ द इवेंट, इट्स बैकग्राउंड, द पीपल इन्वॉल्व, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एसोसिएशंस लिंक्स टू द इवेंट एंड सो ऑन नीड टू बी कंसीडर्ड. उनका बैकग्राउंड और वो सारी चीजें आप उनको कंसीडर कीजिएगा जो आप ऑडियंस एनालिसिस में कर रहे हैं. देन ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इज द ओकेजन, और किस तरीके से आप उस ओकेजन पे कैसी थीम यूज कर सकते हैं. ओके, तो योर प्रेजेंटेशन थीम शुड बी अकॉर्डिंग टू द ओकेजन. सो यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन. फॉर एग्जांपल, इज माय प्रेजेंटेशन इन कोहेरेंस विद द ओकेजन ऑफ द लार्ज इवेंट. सो फॉर एग्जांपल, आप किसी करियर उत्सव या फिर आप किसी करियर कॉन्क्लेव में है, वेयर यू आर डिलीवरिंग द प्रेजेंटेशन, देन योर एंटायर प्रेजेंटेशन शुड बी इन अकॉर्डेंस विद द थीम ऑफ द एंटायर इवेंट. ओके, करियर से रिलेटेड पता लग रहा है, वहां पे आप रिलेशनशिप से रिलेटेड एडवाइस देने की कोशिश कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन देने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहां पे कोहेरेंस नहीं आएगा. एंड देन एम आई एक्वेंटेड विद द प्रोसीजर ऑफ द इवेंट प्रोसीजर से यू शुड बी एबल टू बी acquainted with that. Who are the sponsors and other speakers? What is the venue and duration of my presentation? These are very general details which you can keep on asking. Then comes you choosing a suitable title. The title should be very much appealing. Okay, so the first glimpse of the presentation is the title, and it always creates the first impression. Okay, therefore it is essential that the title is appropriate and conveys the essence of the message. तो make sure कि आपका जो टाइटल है वो आपकी प्रेजेंटेशन के एसेंस को एसेंस को थोड़ा सा इलैबोरेट करने की कोशिश करें. A vague, misleading and fuzzy title may confuse the audience. अगर आप टाइटल बहुत ही फैसिनेटिंग रख रहे हैं लेकिन मटेरियल में कुछ जान नहीं है, कंटेंट में कुछ जान नहीं है, आपकी डिलीवरी अच्छी नहीं है, then that case it's really not going to work. Okay, so title should be in accordance with the presentation. The process of choosing a title may begin by first identifying a topic. Topic आपको पता होना चाहिए. So depends on the occasion, the audience, the type and the purpose of presentation. आपकी audience, आपका occasion, आपका type of the presentation, सबके ऊपर आपका title depend करता है कि आप उसका title क्या रखना चाहेंगे. But title should be catchy. Now number 2, the second step is coming here. That's presentation का preparation कैसे किया जाए. Okay. सो अब तक हमने प्लानिंग ऑफ द प्रेजेंटेशन बात की थी, अब हम प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं. तो प्रिपरेशन का मतलब क्या होता है कि आप किस तरीके से अपनी प्रेजेंटेशन को क्रिएट करेंगे, किस तरीके से अपनी प्रेजेंटेशन को डिजाइन करेंगे. Preparing well is the key to success. Making an oral presentation, whether a seminar presentation, an oral report or project presentation or a business presentation, is easier when it is prepared in a systematic manner. अगर आप systematic manner में present करने की कोशिश करेंगे, you will always be in a added advantage, in a benefit that you would be able to deliver your idea perfectly. Being prepared helps the presenter deal with speech anxiety effectively. आपको अगर speech anxiety होती है, आपको nervousness होती है, hesitation होती है, उसमें आपको मदद मिलेगी, आपको hesitation कम होगी अगर आप systematic approach का use करते हैं. Develop the required confidence. How to develop that specific and particular confidence which you really crave for. तो उस confidence को किस तरीके से आप achieve कर सकते हैं, वो आप preparation के माध्यम से कर सकते हैं. Seek precise and relevant examples and illustrations. You would be able to give relevant examples and illustrations only when you understand and when you prepare well. And then check for accuracy, redundancies and cliches. Accuracy, redundancy मतलब repetition किसी चीज का, cliches मतलब जब आप कोई चीज घिसी पिटी चीज को बार बार यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड द क्लिशे. तो उन सब चीजों से आप मुक्ति पा सकते हैं अगर आप प्रिपरेशन अच्छी तरीके से करते हैं. प्रिपेयरिंग फॉर द प्रेजेंटेशन इन्वॉल्व, 4 चीजें आपकी प्रिपरेशन में इन्वॉल्व होती हैं. नंबर 1, डेवलपिंग द सेंट्रल आइडिया. सबसे पहले सेंट्रल आइडिया को डेवलप कीजिए कि व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया फॉर प्रेजेंटेशन. नंबर 2, डेवलप द मेन आइडिया. सेंट्रल आइडिया के बाद मेन आइडिया को डेवलप करने की कोशिश कीजिए. Number 3, gathering support material. What is the support material to
deliver the presentation so that you can prepare for it. And number 4, प्लानिंग द विजुअल एड्स, आप किस तरीके से अपने इन्फोग्राफिक्स, अपने पिक्चर्स, अपने विजुअल्स, अपनी इमेजेस, एनिमेटेड ग्राफिक्स उसके अंदर डाल सकते हैं सो दैट यू कैन मेक इट मोर अपीलिंग। ऑलराइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट देम वन बाय वन। डेवलपिंग द सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया डेवलप करने का मतलब क्या हो गया? सेंट्रल आइडिया का मतलब होता है कोर आइडिया। आपकी प्रेजेंटेशन का कोर आइडिया क्या है, उसको आपको उसकी क्लैरिटी होनी चाहिए। कंप्लीट डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस दैट कैप्चर्स द एसेंस ऑफ द मैसेज शुड बी यूज्ड। फॉर एग्जांपल, the following are the characteristics of the central idea. Characteristics क्या होती है सेंट्रल आइडिया की? It restates the presentation topic. आपकी टॉप प्रेजेंटेशन का जो टॉपिक है उसको रीस्टेट करने की कोशिश करता है। नंबर 2, इट इज सिंपल ऑडियंस सेंट्रेड आइडिया। ऑडियंस को सेंटर में रख के, ऑडियंस के बारे में सोच के उसका पूरा पूरा डिसीजन लिया जाता है। एंड देन इट इज वन स्टेटमेंट समरी ऑफ द प्रेजेंटेशन। आपकी समरी को एक स्टेटमेंट में अगर हम प्रेजेंट करने की कोशिश करें तो वो आपके सेंट्रल आइडिया के थ्रू होता है। फोकसेस ऑन द कंटेंट ऑफ द स्पीच एंड यूजेस द स्पेसिफिक लैंग्वेज। एक स्पेसिफिक और पर्टिकुलर क्लियर लैंग्वेज वहां पे यूज की जाती है सो दैट एवरीबडी कैन अंडरस्टैंड इट। नंबर 2 इज लॉजिकल डिवीजन ऑफ द सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया का लॉजिकल डिवीजन कैसे करते हैं? स्टेप में इन्वॉल्व मेकिंग अ लॉजिकल डिवीजन ऑफ द सेंट्रल आइडिया, एस्टैब्लिशिंग रीजन फॉर आइडिया बीइंग ट्रू और सपोर्टिंग द सेंट्रल आइडिया विद अ सीरीज ऑफ स्टेप्स। आप एक दो यहाँ पे स्टेप्स इंक्लूड करके आप अपने सेंट्रल आइडिया को सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। Choosing one of these techniques will largely depend upon the topic of the presentation as well as its objective. आपके presentation का topic और उसके जो objective हैं उनके ऊपर पूरी तरीके से depend करेगा कि आप इनमें से कौन सी टेक्निक यूज करना चाहते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपका सेंट्रल आइडिया है अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। अब उसको कैसे डिवाइड करेंगे? नंबर 1 टाइप्स, नंबर 2 कॉजेस, नंबर 3 सॉल्यूशन। तो सबसे पहले टाइप्स को डिफाइन कीजिए, देन कॉजेस को डिफाइन कीजिए, देन सॉल्यूशंस को डिफाइन कीजिए। देन एस्टेब्लिशिंग रीजन फॉर द सेंट्रल आइडिया बीइंग ट्रू। अगर रीजन एस्टेब्लिश करने तो कैसे करेंगे? सेंट्रल आइडिया क्या हो गया हमारा? एजुकेशन इन इंडिया नीड्स टू बी रिस्ट्रक्चर्ड। रीजन क्या होंगे? रीजन ए, रीजन बी, रीजन सी। राइट, 3 रीजन वहां पे दीजिएगा कि आप अपने इस जो भी आप फैक्ट बोल रहे हैं, जो भी आप इंफॉर्मेशन वहां पे देने की कोशिश कर रहे हैं, उसके रीजन क्या है। ऑलराइट, ओके, लेट्स गो टू द नंबर नेक्स्ट पॉइंट, सपोर्टिंग द सेंट्रल आइडिया विद अ सीरीज ऑफ स्टेप। जब आप सपोर्ट करना चाहते हैं अपने सेंट्रल आइडिया को तो कैसे करेंगे? स्ट्रेटजी 1, स्ट्रेटजी 2, स्ट्रेटजी 3। तो पहले स्ट्रेटजी 1 की बात कीजिए, फिर स्ट्रेटजी 2 की बात कीजिए, एंड देन स्ट्रेटजी 3 की बात कीजिएगा। फॉर एग्जांपल, द टॉपिक इज इंडो पाक रिलेशनशिप कैन बी इंप्रूव्ड। किस तरीके से आप उसको इंप्रूव कर सकते हैं? ठीक है, ओके। नंबर 3 इज गैदरिंग सपोर्ट मटेरियल। सपोर्ट मटेरियल क्या होता है? जो भी सिस्टमैटिक अप्रोच आप यूज करना चाहें, चाहे आप इंटरनेट से कोई मटेरियल ले लीजिएगा या फिर आप बुक से ले लीजिएगा और बायोग्राफी से, लोगों के इंटरव्यूज से, तो जहां से भी आप मटेरियल को इकट्ठा करना चाहते हैं, दैट मटेरियल गैदरिंग शुड बी द थर्ड स्टेप। राइट, ये आपके सारे रिसोर्सेज हैं जिसमें से आप फैक्ट्स, एग्जांपल्स, डेफिनेशंस, कोटेशंस और इन सब चीजों को आप वहां पे यूज कर सकते हैं। राइट, so developed and reworked until it's good order. So what do you need to do? First you need to just collect the raw material and then try to reframe it and refine it so that it keeps on building, and then finally you get your final draft. Okay, check for the accuracy, redundancies and cliches. Make sure that these things are not available over there. प्लानिंग विजुअल एड। विजुअल एड कौन कौन सी होती हैं? विजुअल एड की सबसे पहले इंपॉर्टेंस देख लेते हैं कि उनकी रीजन क्या होता है। सर्व स्पीच नोट। सबसे पहले तो वो जब आप अपनी प्रेजेंटेशन को शो करते हैं तो विजुअल नोट्स जो होते हैं वो आपके स्पीच के लाइक मार्किंग पॉइंट्स की तरह काम करते हैं, जिससे कि या फिर हम उनको इस तरह से बोल सकते हैं साइन पोस्ट की तरह काम करते हैं, जो आपकी हेल्प करते हैं अपने पॉइंट्स को याद रखने में, कॉन्फिडेंस देते हैं आपको। दे हेल्प फोकस ऑन थीम ऑफ द प्रेजेंटेशन। आपकी जो प्रेजेंटेशन की थीम है उस पर फोकस करने का काम करते हैं। इंक्रीज ऑडियंस इंटरेस्ट। ऑडियंस के इंटरेस्ट को इंक्रीज करने का काम करते हैं। गिव क्लैरिटी एंड प्रेसिजन। आपको क्लैरिटी और प्रेसिजन देने का काम करते हैं आपकी प्रेजेंटेशन को। तो कौन कौन से प्लानिंग विजुअल एड्स हो सकते हैं? 3D एड्स हो सकते हैं, जैसे कि ऑब्जेक्ट्स, मॉडल्स एंड पीपल, एंड देन देयर कैन बी 2D मॉडल्स, ड्राइंग, फोटोग्राफ्स, slides, maps, chart, graph, table, presentations, black and white boards or something like digital boards, etc. So they all are the 2-dimensional visual aids. So आप इनमें से कुछ भी यूज कर सकते हैं। And then there are certain tips for using the visual aids. Number 1, only relevant visual aids should be used. Okay, so the product is something else and you are putting some different picture which has nothing to do with that product is ultimately going to fail that specific advertisement or specific presentation. So make sure कि आप केवल relevant visual aids यूज करें। ओवर डिपेंडेंस ऑन विजुअल एड्स। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो अपनी प्रेजेंटेशन में हमेशा केवल पिक्चर से पिक्चर्स भर देते हैं, बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारी पिक्चर्स। अगेन, ओवर यूटिलाइजेशन और ओवर डिपेंडेंस ऑन विजुअल एड्स may create a negative impact. Okay, then visual aid is not a substitute to the proper eye contact with the audience. Sometimes people keep on looking at the presentation, they don't look into the eyes of the people, but that should not be done. Okay, if you're using a lot many visual, that doesn't save you from making the eye contact. Eye contact is the most important part or the most crucial, you can say,
the crucial step for your presentation. So make sure eye contact you do not miss. Then number 3 comes your organization of presentation. How you organize your presentation. Good organization is essential for effective presentation. The key to good organization is repetition of the main ideas of your message. So make sure कि जब आप अपनी presentation को deliver करने की कोशिश कर रहे हैं, organize करने की कोशिश कर रहे हैं, आप अपने key ideas को बार-बार rephrase करने की कोशिश करें. So just remember 3 T's in this regard. For example, first T is tell the audience what you are going to tell. Number 2, tell them what you are telling. And number 3, tell them what you have told. राइट. सो मेक श्योर कि पहले आप उसके बारे में बात, आप ये बताएं कि हम किसके बारे में बात करेंगे, तब उसके बारे में बात करें, एंड देन टेल देम कि आपने किसके बारे में बात की. ओके, तो 3 बार वो रिफ्रेज करेंगे आप उसको, देन इट विल बी अ गुड ऑर्गेनाइजेशन. डिवाइड द प्रेजेंटेशन इनटू 3 डिस्टिंक्ट पार्ट, द इंट्रोडक्शन, द बॉडी एंड द कंक्लूजन. पहले इंट्रोडक्शन में डिवाइड कीजिए उसको, फिर बॉडी में, फिर कंक्लूजन में. इंट्रोडक्शन में उसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात कीजिएगा, बॉडी में उसकी बॉडी के बारे में, कंक्लूजन में आप अपनी प्रेजेंटेशन को समरी में डिवाइड कीजिएगा. तो इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन, तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं. इंट्रोडक्शन क्या होता है? इंट्रोडक्शन का मेजर पर्पस क्या होता है? गेटिंग द ऑडियंस अटेंशन, ऑडियंस की अटेंशन को ग्रैब करना. इंट्रोड्यूस द सब्जेक्ट, गिव द ऑडियंस अ रीजन टू लिसन, क्यों सुने वो आपको, उनको रीजन दीजिएगा. एस्टेब्लिश द क्रेडिबिलिटी एज अ स्पीकर, हु यू आर टू स्पीक अबाउट दिस टॉपिक, व्हाट अथॉरिटी डू यू possess. Okay, you need to prove your authority and preview the main ideas. Just make sure that you're previewing the main ideas so that people can, hold on to your communication if they really want to listen to you about that topic. Okay, सो इंट्रोडक्शन में आपको क्या करना है? ऑडियंस का अटेंशन ग्रैब करना है. ठीक है, मैं इसको बहुत ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूंगा. मेक श्योर यू जस्ट गो थ्रू द नोट्स. तो सबसे पहले यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि ऑडियंस के अटेंशन के लिए आपका फर्स्ट इंप्रेशन मैटर करता है. तो ओपनिंग शुड बी कैप्चरिंग इन in nature so that it can capture the attention of the people. How can you do that? किस तरीके से आप ऑडियंस का अटेंशन ग्रैब कर सकते हैं? उनसे आप इंटरेक्ट कर सकते हैं, उनसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. टेल अ स्टोरी, उनको स्टोरी से स्टार्ट कर सकते हैं. स्टार्टिंग आपकी प्रेजेंटेशन की स्टोरी से हो सकती है. यूज कोट्स, स्टार्टिंग में कोट्स यूज कर सकते हैं सो दैट दे कैन ग्रैब द अटेंशन. Then use questions, ask them a lot many questions. Use a proper visual aid. Make sure that if you really want to use that, you can use some props, some tangible objects, and then use humor. Okay, so humor भी आप वहां पे use कर सकते हैं if you really want to. Humor means clean humor so that you maintain the dignity of that formal communication. All right. Now number 2 is the body. Body का मतलब the body contains the main content of the presentation. Okay, जो main content होता है, जो आप majorly deliver करना चाहते हैं, जो आपका core idea होता है, वो आप body में deliver करते हैं. Don't try to convey so much information and include so many ideas. It is advisable to focus on 1 or 2 to 4 मेन आइडियाज. ज्यादा से ज्यादा आप 2 से 4 आइडियाज को आपने प्रेजेंट करने की कोशिश कीजिएगा. उससे ज्यादा आइडियाज को लेके मत जाएगा, अदरवाइज यू विल बी सिंपली ओवरवेलमिंग द पीपल और ऑडियंस. Each main point should be supported by appropriate details. Wherever you are putting certain point, the key idea, make sure that you are having certain evidences or certain facts and figures in order to validate that specific idea. Okay. Use appropriate transitions. जब आप एक आइडिया से दूसरे आइडिया की तरफ जा रहे हैं तो make sure that you are using appropriate transitions. Okay. Accurate, complete and relevant information should be given. Apart from that, there should not be anything. Okay, so what can be the different structures or different patterns which a person can follow in order to give a impactful presentation? आप इनमें से कोई भी सीक्वेंस यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इट कैन बी सिक्वेंशियल, 1 स्टेप के बाद दूसरा स्टेप, दूसरे के बाद तीसरा स्टेप, दैट्स कॉल्ड सिक्वेंशियल. जब आप इनके बारे में बातें करते हैं. जनरल टू स्पेसिफिक, पहले आप जनरल बात कीजिएगा एंड देन ट्राई टू नैरो इट डाउन टू जस्ट रीच दैट स्पेसिफिक लेवल. Specific to general, you can start talking about the specific in very beginning and then you can try to widen your specific route. And then more important to less important, सबसे पहले आप more important के बारे में बात कीजिएगा, then talk about the less important so that you can grab their attention. Or less important to more important can also be a structure, categorical, problem and solution, contrast and comparison. So they can be different variety of you can say patterns which you can utilize in order to deliver the presentation. So finally comes the conclusion. Now what are the major points of conclusion? Summarize the presentation. सबसे पहले presentation को summarize करने की कोशिश कीजिएगा. Re-emphasize the central idea. आपका जो central idea है उसको re-emphasize कीजिएगा. Focus on a goal. Motivate the audience response and provide the closure. Make sure that you are actually providing the closure and you are putting some call to action if you really want somebody to do something or if you really want to persuade somebody. Okay, the call to action should be there. Summarize and re-emphasize the central idea. We have already talked about it. So there's, bit more elaboration. You can just go through it through the text or the material. Okay. And how to just provide the closure? Use the words such as conclusion, lastly, finally, and as my last point, they will definitely just, put a signpost in front of the people that, okay, now this person is concluding. So let's clap or let's put our hands together. Okay. So कभी-कभी ऐसा होता है ना कि सामने वाले व्यक्ति को पता ही नहीं होता कि आप खत्म कर दिए.
है ना. अगर आप बोलना बंद कर रहे हैं then there should be some sort of closure statements. Non-verbal cues may be used to the signal closure. तो आप non-verbal signals भी use कर सकते हैं. For example, you can simply just lean a little bit forward. You can say namaste, or like any sort of gesture which is actually putting you in a situation where you are saying that it's here I'm concluding my points. And then you can just coming to the rehearsing presentation, number 3, how to rehearse the presentation. It is important to rehearse the presentation properly because it will give him more confidence and avoid any distractions and deviation during actual presentation. जब आप rehearsal पहले से करते हैं तो आपका confidence हमेशा high होता है and you are really having a good opportunity or good probability of just coming up with good ideas. It will never make him familiar with his message and will give sufficient time to make positive change in the presentation. अगर आप कुछ गलती कर रहे हैं तो आप rehearsal में कर लेंगे, right? तो उससे आपको परेशानी नहीं होगी and you people will be able to just deliver your presentation in a proper way. So consider following points while rehearsing. Get acquainted with the place, rehearse before the live audience, monitor and control the time taken in delivery and presentation, recreate the presentation environment, and ask for the constructive feedback. Make sure that you are actually following through all these points. Okay. So that's it, my dear students. Thank you so much. I hope that you understood each and every point, and if there is anything which you haven't understood, make sure to point it out in the group comments, maybe through WhatsApp, through Telegram, or through the YouTube channel. And once again, if you have not subscribed the channel, make sure that you subscribe the channel and hit the bell icon so that you can keep on getting all the notifications related to all the videos which I am going to be putting over here. Okay, so thank you so much once again. Please do comment, do subscribe, and do share. And if there is anything which you would like me to include in the videos, or which you want me to just rectify or just change, make sure to bring it to my notice. So catch you in the next one. Have a good day ahead. All the best.